براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ نے اتنا زبردست کام کیا ہے کہ دنیا میں اس کو اکنالجمنٹ ہوئی ہے، اور ہماری اگر ویکسینیشن کو آپ دنیا میں مشکوک کر رہے ہیں تو یہ آپ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اور عمران خان کی دور اندیشی سے ہم نے کووڈ-19 پر بغیر پابندیوں کے اور بغیر کرفیو لگائے اسے بہتر بنایا ہے، لیکن جب اس کا ثمر عام آدمی کو پہنچنے لگا ہے تو اس کی ویکسینیشن کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہ بڑے خونی قسم کے بیانات دے رہی ہیں فوج کے خلاف، اور یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ اس ملک کی وہ فوج جنہوں نے 86,000 جانوں کی قربانیاں دی، لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، اور سب سے پہلے عام آدمی کی امداد کے لیے پہنچتے ہیں، کیونکہ فوج جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے اس کے خلاف غیر ذمہ دارانہ زبان استعمال کر کے وہ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ جلد یا بدیر ان کو ان مسائل سے گزرنا پڑے گا، اور آج یہ جہاں کھڑے ہیں اس کی وجہ بھی محترمہ ہے، اور کل جو یہاں سیاست سے فارغ ہوں گے اس کی ذمہ داری بھی ان پر آئے گی۔ 5 منٹ ہو گئے، اینی کوشچن پلیز۔ دیکھیں الزام تو کسی پہ بھی لگ سکتا ہے، 4 سا سوال کریں نا، 5 منٹ ہے۔ دیکھیں جرنیلز کی ٹرانسفر جو ہوتی ہے، پروموشن اور پوسٹنگ جو ہوتی ہے، معمول کا کام ہے، لیکن پاکستان کے حساس اداروں کو ہم اٹھ کر اگر نشانہ بنائیں تو یہ غیر ذمہ داری کی انتہا ہے۔ یہ بھی ہم کسی اور کی خدمت کر رہے ہیں۔ جرنیل آتے ہیں، جرنیل کیا ایک 76 گروپ سے ہے، ایک 77 گروپ سے ہے، اور ایک چکوال سے تھے، اور یہ گجر خان سے ہیں، اور پروموشن جو ہے، پوسٹنگ جو ہے، وہ صلاحیتوں کی بنیاد پر ہے۔ اگر اس کو بھی آپ سوالیہ نشان بنائیں گے تو مجھے بہت افسوس ہے۔ 5 منٹ پورے تو جی۔ ساری فوج نے زبردست تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ آف کورس میری 15ویں وزارت ہے، اور یہ ان کی قومی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ ہماری فوج ہے اور یہ اس کی قومی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے ٹڈی دل ہو، زلزلہ ہو، آفات ہو، سیلاب ہو۔ ساری دنیا میں آج برطانیہ میں کیا ہوا ہے جی؟ وہاں پیٹرول کے ڈرائیور نہیں ملے تو کیا فوج کو کال نہیں کیا گیا؟ کیا واشنگٹن ڈی سی میں ٹرمپ کے وقت فوج نہیں کال ہوئی؟ اور انڈیا کے حالات دیکھیں، کیا حالات بنے وہاں، کیا اس کی صورتحال بنی۔ کیا ہم پاکستان جیسے حساس ذمہ دار اداروں کو اگر اس طرح میڈیا پر سوال و جواب کریں گے تو بہت غیر ذمہ داری ہے۔ میں ایک دیکھیں، یہ کسیانی بلی کھمبا نوچے، میرا فرد جو ہیں وہ ہی ادارہ ہوتے ہیں، فرد کے نام سے ادارے ہوتے ہیں۔ یہ صلاحیتوں کے ایک دن میں کور کمانڈر نہیں بن جاتا۔ کور کمانڈر کے لیے ایک زندگی صرف کرنی پڑتی ہے، پہاڑوں پہ، دریاؤں پہ، ریگستانوں میں، ریگزاروں میں، اور اتنی ہارڈ جاب کرنی پڑتی ہے کہ جس کا پہلے ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ سو کائنڈلی یس، دیکھیں وہ ثابت ہو گیا کہ نیوزی لینڈ کے مسئلے میں انڈیا ملوث تھا اور ہے، اور ہم نے جتنی اس کو سیکیورٹی دی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور میں نے تحقیق کے بعد یہ بیان دیا تھا کہ ایز اے انٹیریئر منسٹر جتنی سیکیورٹی نیوزی لینڈ کو پرووائڈ کی گئی ہے اتنی تو ان کی فوج نہیں ہے۔ ہم نے 8,000 بندے دیے ہیں، وہ 7800 آدمی ہیں۔ مظہر صاحب، دیکھیں اپوزیشن کا، اگر ہم بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ ایک بڑا المیہ تھا کہ ہر لوگ جو فائل نہیں موو ہوتی تھی، بزنس مین کو اعتراضات تھے،
تو آئے مل بیٹھے بات کریں. ابھی کوئی میرا مطلب ہے یہ قانونی کام کیا گیا ہے, یہ آرڈیننس آیا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور بہت سوچ سمجھ کے ان ساری چیزوں کو سہولت دینے کے لیے کہ جو لوگوں کے آبجیکشنز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کیا گیا. دیکھیں مجھے بطور انٹیریئر منسٹر مختصر سے سوال کس کے خلاف؟ اچھا میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. ویسے دیکھیں اگر تو خبر کی حد تک ہو تو کوئی بات نہیں ہوتی, لیکن آپ اس کے مضمرات دیکھیں, اس کے آفٹر ایفیکٹس دیکھیں, اس کے آفٹر شاکس دیکھیں کہ یہ دنیا میں جو ہمارا مزدور جا رہا ہے اس کی ویکسینیشن کو کوشچن مارک بنایا جا رہا ہے, اور اس کو میں دیکھ لیتا ہوں. باقی ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا میں نے پرسوں بھی کہا تھا, آپ کے احترام میں میں سی ایم کو ملنے آیا تھا پنجاب کو, آپ نے حکم دیا, میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. دیکھیں میں ایسے زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں جو پارلیمانی انداز ہو. آپ اتنے سینئر صحافی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جی خواجہ صاحب. میں جب بات کسی تب شروع ہوگی, سیریسلی کوئی بات بڑھے گی, ہماری یہ خواہش ہے کہ نہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو, نہ ہماری زمین ان کے خلاف استعمال ہو, اور اس میں وہ لوگ جو کہ یہاں مختلف کیسوں میں مطلوب ہے یا ملوث رہے دہشت گردی میں, ان کے لیے ایک اور پیمانہ ہے. اور جو لوگ نقل مکانی کر گئے ان کے بارے میں بات چیت چلی تھی, کوئی بات چیت میرے نوٹس میں نہیں کہ وہ شروع ہوئی یا ختم ہوئی. لاسٹ طریقے سے آپ کا ایک سوال ہو گیا, سوال کریں نا, کیمرہ بعد میں لے آنا. یار اگر سوال کریں گے آپ خبر پڑھ رہے ہیں, جو آئے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس کی بھی امداد کریں گے. سیکنڈ لاسٹ میرا خیال ہے جب الیکشن ہوں گے 2 سال بعد, دیکھیں اب 2 سال کے بھی دیکھیں 2 مہینے اور کم ہو گئے ہیں. آخری 6 مہینے تو آپ کو پتہ ہے, آخری 6 مہینے تو کمپین کے ہوتے ہیں, عبوری حکومتوں کے ہوتے ہیں. میں نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کی اس صورتحال کو میں نئی کیا کہتے ہیں الائنمنٹ دیکھ رہا ہوں الیکشن کے قریب. میں الیکشن کے قریب نئی الائنمنٹ دیکھ رہا ہوں. عمران خان کا ساتھی ہوں, اس کے ساتھ آئے ہوں, اس کے ساتھ جاؤں گا. شارٹ کوسچن, شارٹ اینڈ سمارٹ. ابھی پتہ نہیں, انتظار کریں, ویٹ اینڈ سی. اف دیر از اے لاسٹ کوسچن ملک صاحب, اس کے بعد مظہر, سیکنڈ لاسٹ اینڈ لاسٹ. پورے ہو گئے ہیں 10 منٹ. میں آج ملک صاحب آپ کو ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں, ہم سارے لوگ اپنا چورن آپ کے سامنے بھیج رہے ہیں. بد نصیبی ہے اس ملک کی, 3 سال ہو گئے ہیں, 3 سال ہو گئے ہیں. میں 4 دفعہ, میری 15ویں وزارت ہے, 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں, لیکن میں نے اتنا, اگر آپ لوگ ان کو کور نہ کریں تو آپ سے یہ 24 گھنٹے پورے نہیں ہوں گے. آپ کو میرا مطلب ہے ان سے پیسے لینے چاہیے, ایڈورٹیزمنٹ کے ان سے پیسے وصول کریں چینل, کیونکہ یہ پلان ایسا کرتے ہیں کہ جا رہے ہیں کرپشن کے کیس میں اور گھر سے پیچھے لے کے جاتے ہیں پھولوں کا وہ تھیلا اور پھینکواتے ہیں, اینٹیں بھی بعض اوقات ساتھ لے کے جاتے ہیں, اور پھر وکٹری کے نشان, ان سے ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے لیں چینل. اور یہ کیا کر رہے ہیں اپوزیشن. لاسٹ کوسچن جی مظہر, آپ کا ہو گیا مظہر کا لاسٹ. نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ مفاہمت ہو یا مزاحمت ہو یا فلاح ہو, ان کا ٹائم گزر گیا. They have left the train and express train never wait the passenger. Last. شہباز شریف جو, اب میں کیا کہوں مظہر آپ کو, شہباز شریف جو تھوڑا بہت شروع کرتا ہے اس کو مریم جھاڑو پھیر رہی ہے. یہ گھر کی بات گھر میں رہے تو اچھا ہے. آخری شعر پہ کرتا ہوں, یوں رو رو کے
यूं रो रो के तू अशकों की आबरू न गवा, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा है। लाहौर में विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेंडोरा लीक्स में आने वाले नामों के खिलाफ तहकीकात होंगी। पेंडोरा लीक्स में जो भी मुजरिम होगा उसे सजा मिलेगी। हेडलाइंस आप जान चुके थे और अभी खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। हरनाई और कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद जलजले से लरज़ उठे। मकानात, छतें और दीवारें गिरने से खवातीन और बच्चों समेत कम अज़ कम 20 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी हो गए। अब भी कई अफराद के मलबे तले दबे रहने का खदशा है, जबकि 5.7 शिद्दत के जलजले का मरकज़ हरनाई से 15 किलोमीटर दूर था। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। हरनाई में जलजले ने तबाही मचा दी, हर सू तबाही के निशान। घरों की छतें गिर गई, दीवारों में दरारें, 20 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक है। आफ्टर शॉक्स के बायस लोगों में खौफ व हरास है। शहरी कहते हैं जख्मियों की मुंतकिली में ताख़ीर की जा रही है। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू का कहना है कि इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। बलोचिस्तान में हरनाई समेत कोयटा, सिब्बी, पशीन, कला सैफुल्ला, चमन, ज़ियारत और जोब समेत कई इलाकों में रात 3:02 पर जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। 5.9 शिद्दत के झटकों से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। लोग अल्लाह अकबर और कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। कोयटा, सिब्बी, पशीन, कला सैफुल्ला, चमन में भी मकान गिर गए। सैकड़ों मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई, जबकि जलजिले का मरकज हरनाई से 15 किलोमीटर दूर का इलाका था। ISPR का कहना है कि पाक फौज की जानिब से जिला हरनाई की जलजले से मुतासिरा आबादी के लिए जरूरी खुराक और पनाह गाहें मुंतकिल की गई हैं। आर्मी के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमला जरूरी दवाओं के साथ सिविल इंतजामिया की मदद कर रहा है। जलजले के 9 शदीद जख्मी पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए कोयटा मुंतकिल किए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के बाइस पहाड़ी तोदे गिरने से कई राबता सड़कें बंद हो गयी। हरनाई संजावी रोड की बहाली के लिए लेविस एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। लोरालाई हरनाई शहरा भी बंद हो गई। हरनाई में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। मज़ीद आपको बताएं, हरनाई में जलजले ने तबाही मचा दी, हर सू तबाही के निशान है। घरों की छतें गिर गईं, दीवारों में दरारें आ गईं, जबकि 20 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। आफ्टर शॉक्स के बायस लोगों में खौफ व हरास पाया गया। शहरी कहते हैं जख्मियों की मुंतकिली में ताख़ीर की जा रही है, जबकि वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू का कहना है कि इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। हरनाई जलजला, घर गिर गए, दीवारों में दरारें। कोयटा के मशरक में वाक़ हरनाई का शुमार बलूचिस्तान के उन इलाकों में होता है जहाँ बड़ी तादाद में कोयले की कानें हैं। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब 3:02 पर आने वाले जलजले से बच्चों और खवातीन समेत 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। इलाके में बड़े पैमाने पर मकानात को भी नुकसान पहुँचा है। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। हरनाई समेत मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों में दवाओं की किल्लत पैदा हो गई है। अस्पतालों में जख्मियों के लिए जगह कम पड़ने के बायस अस्पताल के अहाते में जख्मियों को तबी इमदाद दी जा रही है। जलजिले में जख्मी होने वाले मुजफ्फर खान का कहना है बलूचिस्तान हुकूमत मरीजों को कोयटा मुंतकिल करने में ताखीर कर रही है। अभी तक जितने सीरियस मरीज है वो सब अस्पताल में पड़े हुए हैं और उनको कोयटा रेफर करने के लिए एम्बुलेंसों का इंतजार है जो अब तक नहीं पहुंचे है। और हमें सुनीत में आया है कि हमारे बलूचिस्तान हुकूमत ने हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर अब तक नहीं पहुंचा हुआ है। अब पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा ना हो कि ये सीरियस मरीज हेलीकॉप्टर के इंतजार में आ रहे और वो हेलीकॉप्टर न पहुंचे। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला मीर ज़िया लांगू का कहना है जलजिले की वजह से हरनाई में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। जिले में इमरजेंसी नाफिज करके इमदादी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। सूबाई इदारे PDMA को मुतहरिक करके हेवी मशीनरी हरनाई के लिए रवाना कर दी गई है।
अहम खबर ये भी है कि अफगानिस्तान के सूरत-ए-हाल पर बड़ों की बड़ी बैठक होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत फिर सर जोड़कर बैठेगी। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे, जबकि अस्करी क़यादत की जानिब से अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर खुसूसी ब्रीफिंग भी दी जाएगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे हम खबर दें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पेंडोरा और पनामा लीक्स में आने वाले पाकिस्तानियों के नामों पर जामे तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। पेपर्स का हंगामा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बड़ा मुतालबा कर दिया। वजीर आजम के नाम खत में ट्रांसपेरेंसी की चेयरपर्सन यास्मीन लारी ने कहा, पेंडोरा पेपर्स में 700 और पानामा लीक्स में 450 पाकिस्तानियों के नाम आए। 2016 में पानामा लीक्स के बाद FBI और दीगर इदारों ने कोई मौसर इकदाम नहीं किए। इमरान खान ने अप्रैल 2018 में लाई गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम बराए बैरूनी असासाजात को बतौर सरबराह तहरीक इंसाफ मुस्तरद कर दिया था। तहम अगस्त में हुकूमत में आने के बाद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान FBI को हिदायत जारी करें कि पानामा और पिंडोरा में आने वाले पाकिस्तानियों के नामों पर जामे तहकीकात की जाएं और टैक्स चोरी समेत गलत करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तमाम अफराद के ज़राए आमदन के सबूत हासिल किए जाएं, वजाहत देने में नाकाम अफराद के बैरूनी मुल्क असासे मुंजमद किए जाएं और कवानीन के तहत गैर कानूनी असासे वापस लिए जाएं। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर देंगे आपको बलूचिस्तान से, जहां सियासी बहरान की गुत्थी मजीद उलझ गई। हुकूमत इत्तेहाद की डेडलाइन को नज़रअंदाज करने पर वज़ीर आला जाम कमाल को एक और झटका लग गया। मजीद 3 सूबाई वज़रा और 2 मुशीरों ने साथ छोड़ दिया। सूबाई वज़ीर असद बलोच कहते हैं अब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की जानिब से हुक्मरान इत्तेहाद के नाराज अरकान की डेडलाइन को नजरअंदाज करने और इस्तीफा न देने के बाद उनकी काबीना के 3 अरकान और 2 मुशीर मुस्ताफी हो गए। मुस्ताफी वज़रा और मुशीरों में वज़ीर खजाना ज़हूर बुरैदी, वज़ीर खुराक अब्दुर्रहमान खेतरान, वज़ीर समाजी बहबूद असद बलोच, वज़ीर आला के मुशीर बराए मेहनत और अफरादी कुव्वत मोहम्मद खान लहरी, मुशीर बराए माहीगिरी हाजी अकबर आसकानी, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बुशरा रिंद और पार्लिमानी सेक्रेटरी मादियात सिकंदर उमरानी शामिल है। नाराज अरकान ने मंगल को वज़ीर आला को मुस्ताफी होने के लिए 6 अक्टूबर की शाम तक डेडलाइन दी थी। तहम हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने कहा कि वज़ीर आला जाम कमाल खान इस्तीफा नहीं देंगे। वज़ीर आला का इस्तीफा न आने पर नाराज सूबाई वज़ीर असद बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने वज़ीर आला को रुखसती के लिए बाइज्जत रास्ता देने का फैसला किया है। अब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। खबर देंगे आपको कराची से, जहां शहरियों ने मोटरसाइकिलों पर साइड मिरर से मुतालिक सिंध हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर में 99% से जायद मोटरसाइकिलों पर साइड मिरर ही नहीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। मोटरसाइकिल सवार की हिफाजत के लिए सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल पर साइड मिरर लगाना लाजमी करार दे दिया, मगर मोहतात अंदाजे के मुताबिक शहर में 99% से जायद मोटरसाइकिलों पर साइड मिरर ही नहीं है। मोटरसाइकिल पर साइड मिरर लगाने के मुतालिक जब शहरियों से सवाल किया गया तो किसी ने सिंध हुकूमत के हुक्मनामे पर लाइल्मी का इजहार किया तो किसी ने रिवायती अंदाज में हीले बहानों से काम लिया। अभी भी पता पड़ा, अभी लगाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। सिर्फ साइड मिरर जरूरी थोड़ी है, हेलमेट जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का है, पता नहीं लगा लूंगा। लगी हुई है, ये देखे टूट गया। ये जो बाइक वाइक जाती है ना तो उसमें टूट जाता। लगाए तो वो टूट गए, घर पे भूल के आगे भी लगा दूंगा लाके। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर साइड मिरर न लगाने पर 520 रुपए का चालान है। अगर शहरी जुर्माने से बचना चाहते हैं तो फौरी तौर पर साइड मिरर लगवाएं। भर की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड स्पेस वीक जारी है। कराची में कुतियाना मेमन एसोसिएशन स्कूल के तहत फेयर हॉल में तकरीब और स्पेस वॉक का एहतमाम किया गया। तालिबात ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रंग बिरंगे मलबूसात, किसी के सर पर खूबसूरत हेलमेट तो किसी के सर पर चांद तारों से सजा ताज। ये हैं मुस्तकबिल के मेहमान।
वर्ल्ड स्पेस वीक के मौके पर खारादर कराची के कुतियाना मेमन एसोसिएशन स्कूल के तहत फिरियर हॉल में तकरीब और स्पेस वॉक का एहतमाम किया गया। तकरीब में तालिबात ने कमाल महारत और जहानत से जदीद टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर किया। तालिबात ने मुख्तलिफ पोस्टर्स की मदद से साइंस के मैदान में अपनी सलाहियतें दिखाई। क्या तजुर्बा हासिल किया वो भी बताया। हम लोग वर्ल्ड स्पेस पे ना गर्ल्स भी जा सकती हैं, हर एक लेडीज वेडीज सब जा सकती हैं। हमारे यहाँ पोस्टर कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, पोस्टर्स बने हैं, चार्ट्स बने हैं। आज हम लोग स्पेस वॉक के लिए आए हैं और हमारा 3rd डे है। वुमेन सिर्फ किचन में ही नहीं बल्कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं, मतलब स्पेस पर भी जा सकती हैं। और जो स्पेस पर पहली वुमेन गई थी वो थी वैलेंटीना। वर्ल्ड स्पेस डे पर खवातीन के किरदार की अहमियत पर KMA स्कूल की तालिबात ने वॉक देखी। KMC गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल सुमेरा चौधरी का कहना था कि खवातीन किसी तौर पर पीछे नहीं, बस इन्हें मौके मिलने चाहिए। लड़कियों को, औरतों को आगे आने की जरूरत है, एडवांसमेंट की जरूरत है, मजीद फर्दर तालीम हासिल करने की जरूरत है। यानी कि इनकी सोच का लेवल जो है वो कितना हाई हो रहा है। दिस इज माई प्राउड। तालिबात स्पेस वीक की मुनासिबत से पूरा हफ्ता मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेकर जदीद साइंस से मुतालिक मालूमात में इजाफा कर रही हैं। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक, असद उमर, फवाद चौधरी, मुराद सईद, हमाद अजहर, खुसरो बख्तियार और दीगर रहनुमा भी इजलास में शरीक। इजलास में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, पार्लिमानी और सलामती अमूर पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक, असद उमर, फवाद चौधरी, मुराद सईद, हमाद असर, खुसरो बख्तियार और दीगर रहनुमा भी इजलास में शरीक। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और देखते रहिए।